اس میں جائزہ لیا گیا۔ مسلح افواج کی پیشہ ورانہ تیاریوں پر اظہار اطمینان بھی کیا گیا۔ کور کمانڈر کانفرنس نے بھارت کے سرجیکل سٹرائیک کی بے بنیاد دعوے کو مسترد کر دیا۔ بھارتی دعوے مقبوضہ کشمیر میں جاری ظلم و ستم سے عالمی توجہ ہٹانے کے لیے کیے جا رہے ہیں، یہ کہنا ہے ISPR کا۔ محمد عمران ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ عمران، اپڈیٹ کیجیے گا اس اجلاس کے بارے میں۔ جی، آج کور کمانڈر کانفرنس جو کہ بہت اہم اجلاس تھا، جو اس وقت تمام ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، اور اس وقت جو ایک صورتحال پیدا ہوئی تھی، خصوصی طور پہ ایک انگریزی اخبار کو جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ہونے والی ایک نیشنل سیکیورٹی کے معاملے کے اوپر ایک انتہائی اہم میٹنگ کے حوالے سے جو کانٹینٹ لیک کیے گئے تھے، اس پہ آج آرمی چیف سمیت تمام جو شرکاء تھے کور کمانڈر کانفرنس کے، جن میں نہ صرف کور کمانڈرز بلکہ پرنسپل سٹاف آفیسرز بھی موجود ہوتے ہیں، انہوں نے اس خبر کو نہ صرف بے بنیاد قرار دیا اور یہ کہا ہے، اس کے اوپر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اس کو کہا ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی، قومی سلامتی کے خلاف یہ خبر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے طویل بحث جو ہے اس سارے معاملے کے اوپر ہوئی آج کور کمانڈر کانفرنس کے اجلاس میں، اور اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا اور شرکاء کو بریف کیا گیا کہ حکومت کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، حالیہ ملاقات میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس حوالے سے تحقیقات کی جائے، اور گزشتہ روز وفاقی وزیر داخلہ نے بھی اس حوالے سے پریس کانفرنس میں کہا کہ تحقیقات جاری ہیں۔ لیکن آج جو راولپنڈی میں اجلاس ہوا ہے اس میں اس سارے معاملے کو بہت تفصیل کے ساتھ دیکھا گیا، اور کور کمانڈرز نے اور پرنسپل سٹاف آفیسرز نے اس کو نیشنل سیکیورٹی کے خلاف قرار دیا ہے۔ جو دیگر اہم موضوعات آج کی اس کانفرنس میں زیر بحث رہے، ان میں لائن آف کنٹرول کی صورتحال اور پاکستان آرمی کی آپریشنل تیاریوں کے معاملات بھی زیر بحث آئے۔ لائن آف کنٹرول کی جو صورتحال ہے اور بھارت کی جانب سے جو سرجیکل سٹرائیک کے دعوے کیے گئے تھے، ان کو ریجیکٹ کیا ہے، مسترد کیا ہے آج کور کمانڈر کانفرنس نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بے بنیاد دعوے اس لیے کیے گئے ہیں کہ جو بھارت کی جانب سے اس وقت کشمیریوں کے اوپر جو ظلم و ستم جاری ہے، جو کہ اپنی آزادی کی تحریک کے لیے پرامن دنیا کی تبلیغ کی جائے، کہا کسی بھی قسم جو ہے وہ نہیں، ساتھ ہی جو آپ کے اوپر سے خیریت کی بات میں آرمی صورتحال ہے، آپریشنل تیاریوں کے حوالے سے ہے، معاملات ہیں، اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا، اور آرمی چیف نے ایک دفعہ پھر اس بات اور اس عزم کو دہرایا ہے کہ مادر وطن کی حفاظت کے لیے جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے کی جائے گی، اور کسی بھی دیا جائے گا۔ پالیسی ایسی بھی جاری لیٹر کے جواب دے کے حوالے معاملات ہیں پہ بھی ضربے جو ہے ایک دفعہ پھر اور مختلف آ رہے ہیں حوالے سے دور کیا جائے یہ مودی کا ٹھیک ہے، اپنے کور کمانڈر چیف اندرونی جائزہ لیا، پیشہ ورانہ کا
ने दावे से आलमी तवज्जो हटाने के लिए किए जा रहे हैं। ISPR ने यह बयान खबर से आगाह करें। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बेबुनियाद दावे को मुस्तरद कर दिया है। शुरका ने कौमी सलामती से मुतालिक गलत और बेबुनियाद खबर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मुल्क की मजमूई अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया गया। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस ने भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बेबुनियाद दावे को मुस्तरद कर दिया। शुरका का कहना था कि भारतीय दावे मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म सितम से आलमी तवज्जो हटाने के लिए किए जा रहे हैं। कोर कमांडर्स ने कौमी सलामती के मनाफी गलत और बेबुनियाद खबर फीड करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इसे नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ करार दे दिया। इजलास में मुसल्लह फ़ौज की पेशा वराना तैयारियों पर भी इत्मीनान का इजहार किया गया। हम आपको अपडेट कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बेबुनियाद दावे को मुस्तरद कर दिया। शुरका ने कौमी सलामती से मुतालिक गलत और बेबुनियाद खबर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ। मुल्क की मजमूई अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की सूरत हाल का इसमें जायजा लिया गया। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस ने भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बेबुनियाद दावे को मुस्तरद कर दिया। शुरका का कहना था कि भारतीय दावे मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म सितम से आलमी तवज्जो हटाने के लिए किए जा रहे हैं। कोर कमांडर्स ने कौमी सलामती के मनाफी गलत और बेबुनियाद खबर फीड करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इसे नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ करार दे दिया। इजलास में मुसल्लह फ़ौज की पेशा वराना तैयारियों पर भी इत्मीनान का इजहार किया गया। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है इस्लामाबाद में। हारून रशीद सीनियर तज्ज़ेकार हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, इस अहम कॉन्फ्रेंस में एक तो भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के दावे को मुस्तरद किया गया और साथ साथ कौमी सलामती से मुतालिक गलत और बेबुनियाद खबर पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, वो सर्जिकल स्ट्राइक्स पे तो हुकूमत पाकिस्तान की पोजीशन पहले ही वाज़ेह है और सूरत हाल भी वाज़ेह है। उसमें कोई इब्हाम तो है नहीं, ऐसी कोई स्ट्राइक्स नहीं हुई। उन्होंने अपने अवाम को मुतमईन करने के लिए एक अफसाना गढ़ा और वो बेनकाब हो गया। अहमियत इस बात की है कि इस खबर के बारे में उन्होंने कहा कि एक तो झूठी है, दूसरा इससे नेशनल सिक्योरिटी पे असर पड़ा। तो ये कुछ अखबार नवीज जो है 3-4 दिन से उन्होंने हंगामा कर रखा था। एक आदमी है, उसकी हैसियत माज पैगंबर की है, उसने खबर दे दी और छाप भी दी, तो क्या हुआ? ये अजीबोगरीब दलील है कि क्या हुआ। ये आज़ादी सहाबत की हुदूद होती हैं, जहाँ से दूसरे की नाद शुरू होती है वहां तक आपकी छड़ी नहीं जा सकती। आज़ादी जो है हमेशा डिसिप्लिन के साथ होती है। नेशनल सिक्योरिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें जरा सा भी समझौता किया जा सके। जिस मुल्क का दिफा नहीं होता वो मुल्क ही नहीं रह सकता। ये एक ऐसी चीज है जिसको फौज कभी गवारा नहीं करेगी और अवाम भी कभी गवारा नहीं करेंगे। तो ये मजाक जो है ये बंद होने चाहिए। पाकिस्तान में बाद मीडिया ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके अपने एजेंडे हैं। इससे पहले एक हादसा हो चुका है, ये दूसरा हादसा है। इसको रियलाइज करना चाहिए अखबार नवीसों को भी और सियासी क़यादत को भी, और इसकी तफ्तीश होनी चाहिए और जो शख्स जिम्मेदार है उसे सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर तज्ज़ेकार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया हमें। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि भारत के खिलाफ भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बेबुनियाद दावे को मुस्तरद कर दिया है। शुरका ने कौमी सलामती से मुतालिक गलत और बेबुनियाद खबर पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की मजमूई अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया गया। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस ने भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बेबुनियाद दावे को मुस्तरद कर दिया। शुरका का कहना था कि भारतीय दावे मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म सितम से आलमी तवज्जो हटाने के लिए किए जा रहे हैं। कोर कमांडर्स ने कौमी सलामती के मनाफी गलत और बेबुनियाद खबर फीड करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इसे नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ करार दे दिया। इजलास में मुसल्लह फ़ौज की पेशा वराना तैयारियों पर भी इत्मीनान का इजहार किया गया। हम आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम कॉन्फ्रेंस के बारे में। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जिसकी सदारत की आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने। इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस ने भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बेबुनियाद दावे को मुस्तरद कर दिया। शुरका का कहना था कि भारतीय दावे मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म सितम से आलमी तवज्जो हटाने के लिए किए जा रहे हैं।